नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सिप्पी घाट में 8वां बोंगो महासम्मेलन का हुआ आयोजन। सांसद ने की नए मुख्य सचिव से मुलाकात और विश्व एड्स दिवस पर मोटर बाइक रैली आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। असम के स्थापना दिवस के अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने इन द्वीपों में रहने वाले असम राज्य के लोगों को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने बताया कि विशाल ब्रह्मपुत्र की भूमि असम अपने हरे भरे चाय के बागानों, समृद्ध वन्य जीवन और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि असम अपनी सांस्कृतिक विविधता में एकजुट लोग, लचीलापन, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। सिप्पी घाट के जोड़ाकिलान स्थित राधा गोविंद मंदिर में 8वां बोंगो महासम्मेलन का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदू बंगाली बस्ती के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 दिसंबर को सिप्पी घाट के जोड़ाकिलान स्थित राधा गोविंद मंदिर में 8वां बोंगो महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय केंद्रीय पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर मुख्य अतिथि थे, जबकि द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में बानी के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. हलदर ने बानी के गठन, अंडमान में बंगाली बस्ती और द्वीप समूह के इतिहास के बारे में जानकारी दी। এরপরে আমাদের মধ্যে মারা হয়েছে শ্রীধরজিৎ মাঝি 1982 তে ওইবিতে আমাদের মারা হয়েছে কানাডার স্বপন দাস মঙ্গলবারের বাড়ি আমাদের মধ্যে ধর্ষণ হয়েছে এবং তাদের 12 বছরের শিশুকে মার্ডার করা হয়েছে সৌদারিতে মোহাম্মদিন 1995 তার আগেও মার্ডার হয়েছে। শ্রী অতুল চন্দ্র চ্যাটার্জি যার নামে আজকে পল্লী উন্নয়ন সমিতি, অতুল স্মৃতি সমিতি, তিনিও মার্ডার হয়েছিলেন। মার্ডার হয়েছিলেন কয়দিন হলেও দুই সাহা। इस बीच विभिन्न क्षेत्रों में दिए योगदान के लिए वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। উনি প্রায় 16-17 জন যিনি সরকারি চাকরি করতেন। এবার इस अवसर पर बोलते हुए द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने उपस्थित लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकास में बंगाली बस्ती के योगदान का स्मरण कराया। উনি আন্দামান নিকোবর বিকাশের অনেক কাজ করছেন। ডিগলিপুর দ্বীপ নর্থ আন্দামান হবে আগামী দিন সিঙ্গাপুর বানাচ্ছেন কে? আমাদের মাননীয় শান্তনু ঠাকুরজি। ক্যাম্পবেল বেতে বানাচ্ছেন মোদিজি, সেকেন্ড সিঙ্গাপুর। তার মন্ত্রী হচ্ছেন আমাদের ঠাকুর শান্তনুজি। বাজপেয়ী গভর্নমেন্টের সময়কালে मीटिंग आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम MP मांग में किया था सेटलर को, भारतीय परिवार को लैंड दो 7.5 बीघा। अपने संबोधन में माननीय पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। আমি আন্দামানে অনেকবার এসেছি, আন্দামানের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছি। ছোটবেলা থেকেই আন্দামানের কথা শুনে এসেছি এবং মনের ভিতরে একটা কিউরিওসিটি হতো যে আন্দামান থেকে শ্রীধাম ঠাকুরনগর ঠাকুর বাড়িতে অনেক মানুষ আসেন, তাদের মুখে ডিগলিপুরের কথা শুনি, তাদের ভিতরের মুখে লিটল আন্দামানের কথা শুনি, নীল হাফলক বিভিন্ন জায়গা কথা শুনি। একবার দেখতে হবে মানুষরা কেমন থাকে ওখানে, কি অবস্থা। তো সেখানে বিভিন্ন লোকের, আমাদের বিশেষ করে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা সবচাইতে বেশি এখানে বাস করেন। তো তাদের মধ্যে থেকে
একটা বিষয় উঠে এসেছে যে কোনো একটা আইল্যান্ডকে ঠাকুরের নামে করা হোক। আমাদের মাননীয় সাংসদ তার ডিক্লারেশন দিলেন, আমি ওনাকে বলেছিলাম যে আমি এখন মন্ত্রী, আমি তো আর এই বিষয় নিয়ে তুলতে পারবো না সদনে, কারণ আমার কোশ্চেন, সাংসদদের কোশ্চেন আমার শুনতে হয়, আমি নিজে প্রশ্ন তুলতে পারি না সংসদে। তাই কোনো সাংসদ যদি তোলে ব্যাটারটা নিয়ে ভালো হয়, তা সবচাইতে ভালো হবে আমাদের সাংসদ মহোদয় যদি বিষয়টা তোলেন। তা উনি এগ্রি হয়েছেন, কেননা সর্বজাতিকে সঙ্গে নিয়ে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা বৃহত্তর ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে গড়ে তুলব। আন্দামানের ঐতিহ্য ইতিহাস সম্পর্কে আমার খুব বেশি জানা নেই, তবে আমি বলবো যে আগামী দিনে আন্দামানে যারাই বসবাস করবে সকলেই আমরা ভারতবাসী। আমরা একত্রিতভাবে যদি আমাদের ইউনিটি তৈরি করি, ভারতবর্ষের ঐক্য বাড়বে, ভারতবর্ষের শক্তি বাড়বে, ভারতবর্ষের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতবর্ষকে আগে সুপথে চালিত করবে, এটাই আমাদের লক্ষ্য। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने आज प्रशासन के नए मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार से शिष्टाचार भेंट की तथा उनके नए कार्यभार पर द्वीप समूह में उनका स्वागत किया। सांसद ने नए मुख्य सचिव को बताया कि द्वीप समूह में कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। सांसद ने विश्वास जताया कि मुख्य सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। सांसद ने नए मुख्य सचिव को द्वीपवासियों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाने वाली विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने सांसद को आश्वासन दिया कि इन मामलों पर वे गौर करेंगे तथा द्वीपवासियों को लाभान्वित करने के लिए समय पर क्रियान्वयन हेतु सभी परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करेंगे। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मोटर बाइक रैली आयोजन किया गया। इस मोटर बाइक रैली में समुदाय, युवाओं और स्वास्थ्य विभाग के 50 से अधिक बाइक चालकों ने भाग लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि थे। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी सम्माननीय अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस अवसर पर जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर M.K. साहा, अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, अनिम्स और अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 1 दिसंबर को हर साल हम लोग वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, तो इसके लिए यहाँ भी हम लोग अच्छा प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को, युवाओं को, सबको हम जागरूक करने के लिए एक विशाल एक प्रोग्राम का आयोजन होता है, जिसमें कि आज भी आपने देखा है 2 मिनट पहले ही एक बाइक रैली निकली है, जिसमें नवयुवकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि जो एड्स है, एड्स खाली एड्स नहीं है, उसके साथ और भी संक्रमित बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, या इवन बाकी जो बीमारियां हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि अपना ब्लड के रूट से या सेक्सुअल रूट से या बाकी फ्लूइड से जाती हैं, तो इंट्रावेनस रूट से जाती हैं, तो उनको रोकथाम के लिए, और जो रोक सकती हैं, और उनके आपको भी पता है परिणाम जो है बहुत ही घातक होते हैं। तो ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए हमें जो सबसे कारगर उपाय है भारत जैसे देश में, वो है उसकी रोकथाम के लिए प्रचार और प्रसार और उनके बारे में जागरूकता होनी, खासकर बच्चों में हो रही है। दूसरा मेरा मानना है कि ये हम इस एक्टिविटी को एड्स डे तो बनाते ही हैं, लेकिन हम समय समय पर उसके बियॉन्ड भी स्कूल कॉलेजेस में जाकर के बच्चों को, हमारी जो सोसाइटी है नैको की, अंडमान निकोबार का जो प्रशासन की हमारी जो टीम है, वो भी जाकर के उनके बच्चों में इस बात की जागरूकता करे। और विशेषकर इस समय में जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिसेंट टाइम्स में ड्रग का ओवरहॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन चीज़ों की रोकथाम पुलिस का तो काम है, ये बाकी एजेंसीज हमारी कर रही हैं, लेकिन हमारा भी एक दायित्व बनता है कि बच्चों के भारत के निर्माण में और युग निर्माण में सहयोग के लिए हम ये स्वास्थ्य विभाग भी उनकी जागरूकता करे। यह रैली अंडमान क्लब से सेल्युलर जेल, घंटाघर बंगाली क्लब, डिलानीपुर जंक्शन, गोलघर, जंगली घाट स्कूल लाइन, डॉलीगंज भातू बस्ती, अस्टिनाबाद कार्बाइन स्कोप होते हुए अंडमान क्लब पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली के साथ सूचना, शिक्षा, प्रसार वैन भी थी, जिससे पूरे मार्ग में पोस्टर और ऑडियो संदेश प्रसारित किया गया। और हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है।
तभी तो पहली आगामी 27 से 31 दिसंबर तक श्री विजयपुरम के ITF मैदान में द्वीप पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इन 5 दिनों के लिए आयोजित होने वाले द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान खाद्य व सामान्य स्टॉल आवंटन के लिए इच्छुक उद्यमियों, फार्म व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार लॉटरी सिस्टम पर चयनित आवेदकों को स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। भरा हुआ आवेदन पत्र, स्टॉल आवंटन के लिए निर्धारित किराया और सुरक्षा जमा राशि तथा नियमों और शर्तों की प्रति के साथ 6 दिसंबर को शाम 3 बजे तक या उससे पहले सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय के योजना अनुभाग में जमा करना होगा। स्टॉल से संबंधित जानकारी के लिए निदेशालय की वरिष्ठ अन्वेषक नलिनी नायर से मोबाइल नंबर 9434281308 तथा सहायक प्रबंधक श्री चंद्र राव से मोबाइल नंबर 9434282324 पर कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। हम भी कितने बुद्धू हैं ना, बात करने में झिझकते हैं, फुसफुसा कर रह जाते हैं, डर भी लगता है पर शर्माते हैं, मन ही मन सोचते रह जाते हैं, क्या करें, किसको कहें। पर ये बच्चे हिचकिचाते नहीं, पूछ डालते हैं। तो चलो आज एक नई शुरुआत करते हैं, बच्चों से सीखते हैं, शर्माना छोड़ छाड़ कर बात करते हैं, खुलकर सवाल करते हैं। तो फिर अनजाने में होने वाली गलतियों को अलविदा कहा क्या, सवाल किया क्या। HIV/AIDS से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही मुफ्त हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल कीजिए। अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा 30 नवंबर को श्री विजयपुरम राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बाल अधिकार और दिव्यांगजन विषय पर विधि जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र समुदाय और स्कूल के शिक्षण कर्मचारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। श्री विजयपुरम स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच के विद्वान रजिस्ट्रार सह अंडमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भवानी शंकर शर्मा और पारिवारिक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश दीप्तेंद्र नाथ मित्रा इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका रूपरत्ना ने अतिथियों का स्वागत किया। शिविर के दौरान जागरूकता बढ़ाने के लिए कई मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में गणमान्य अधिकारियों ने बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित करने तथा समावेशी और समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। पेरेंट्स का भी ये बहुत अहम भूमिका रहता है। और खाली पेरेंट्स का नहीं है, हम सबको भूमिका रहता है। कोई रास्ता में, कोई जगह में हम लोग कहीं देखें कि किसी का ये कोई बच्चा के ऊपर कोई शोषण होता है, कोई पीड़ित है बच्चा, तो हम लोग को तुरंत हम लोग को जो क्रिया है उसको करना है, हमको एक्ट करना है। हमको क्या करना है, हमको जाके बड़ा आदमी लोग जैसा हम है, सर है, हाँ आप लोग का टीचर है, जाके कोई पुलिस वाले से मिलना है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलना है, हाँ वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलना है। श्री दीप्तेंद्र नाथ मित्रा साहब बता चुके हैं अधिकारों के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में बता चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी अच्छी बात बताई, हम आज एक सरकारी स्कूल में हैं और हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये आप लोगों के शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अच्छा, ये बात कितने बच्चों को मालूम है कि जो गुरु है, अच्छा
अच्छा, जो टीचर्स है उनको गुरु भी बोलते हैं, ये बात मालूम है सबको? और जो गुरु है उसका स्थान, उसकी जगह माता पिता के समान होती है, ये बात मालूम है हमको? मुझे सुनाई नहीं दिया। तो अगर हमारे जो टीचर्स हैं हमें हमारे भविष्य को लेकर के कुछ बात बताएंगे, हमारी पढ़ाई के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, हमारी अच्छी दिनचर्या के बारे में, हमारे फोकस होकर के पढ़ाई करने के बारे में, तो हमें वो उनकी बातें पूरी तरह से माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? फिट रखने और मेंटली भी फिट रहे, इसलिए हम योगा करते हैं। अगर हम लोग योगा करेंगे तो हम लोग का पढ़ाई में फोकस रहेगा और हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। बदल दी जाए और मैं क्लास 9th B की छात्रा हूँ, तो अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आगे हम फ्यूचर में जाके एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। ये है रेखा, थोड़ी परेशान दिख रही हैं। आइए देखते हैं क्या बात है। सच कहूँ दीदी, जब से HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बहुत डर गई हूँ। आज नहीं तो कल मुझे कुछ हो गया तो। रेखा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, पर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि HIV के साथ जी रहे लोग भी नियमित रूप से दवा लेकर एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। सच में? कौन सी दवा दीदी? इन दवाइयों को एंटी रेट्रोवायरल दवाइयाँ कहते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर मुफ्त मिलती हैं। ये दवाइयाँ शरीर में वायरस की संख्या को कम करने का काम करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, क्या मुझे ये दवा रोज लेनी होगी? हाँ, बहुत जरूरी है कि ये दवा रोजाना निश्चित समय पर ली जाए। भूल कर भी नहीं भूलना कि कोई खुराक छूटे। ठीक है दीदी। और ये दवा कितने दिन लेनी होगी? तुम्हें ये दवा आजीवन नियमित रूप से लेनी होगी। धन्यवाद दीदी। अब तो मैं ये दवा रोजाना निश्चित समय पर लूंगी। तो अब आप भी याद रखिए, HIV के साथ जी रहे लोग नियमित रूप से ART लेकर एक स्वस्थ व खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और हाँ, HIV/AIDS संबंधित अधिक जानकारी के लिए तथा अपने निकटतम ART सेंटर के बारे में जानने के लिए नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। नशा मुक्त बाराटांग शीर्षक के तहत जिला परिषद कप फुटबॉल प्रतियोगिता सीजन 1 का ग्रैंड फिनाले ओरल कच्छा के वन विभाग के मैदान में आयोजित किया गया। 12 प्रतिभागी टीमों वाले इस टूर्नामेंट का समापन स्पार्क बॉयज और राफ्टर्स क्रीक के बीच रोमांचक फाइनल मैच के साथ हुआ, जिसमें स्पार्क बॉयज ने 2-0 से निर्णायक जीत हासिल की। इस मौके पर उत्तर व मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष जून मुख्य अतिथि थे, जबकि ओरल कच्छा स्कूल की उप प्रधानाचार्य के शीला सम्माननीय अतिथि थी। मुख्य अतिथि बन इस मैच के बॉल को मैच रेफरी को प्रीतम की मौजूदगी वहां पर, प्रीतम मौजूद हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये निकाला पहला, जबरदस्त 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 साबित कर दिया हम हैं यहां पर। पहला गोल जबरदस्त तरीके से स्पार्क बॉयज ने ओपनिंग कर दिया है। रेड को बता दिया है कि श्री विजयपुरम से आए हैं हम, लेकिन ट्रॉफी में पहला हक हम ही लेकर जाएंगे।
अच्छी खेती के लिए। स्वागत इसलिए ओपनिंग कर लिया है, एक दबाव बना हुआ है, एक अलग से दबाव बना हुआ है। अगर आसमान में सितारे होते तो सितारे भी शर्मा जाते कि जमीन पे सारे सितारे क्या कर रहे हैं। सितारे ही सितारे हैं। रौनक रेफरी को सिर्फ एक गोल की जरूरत है, एक गोल के साथ में साझा हो सकता है, एक से मैच हो सकता है, 1-0 से जो है सात बॉयज आगे चल रहे हैं। कोशिश करनी होगी, स्ट्रेटजी को बदलनी होगी। अगर मौका बन सकता है तो इतिहास लिखा जा सकता है। ये जमीन याद रखेगी कि आपने भी यहाँ पे 12 टीमों को पीछे छोड़ते हुए इस चमचमाती ट्रॉफी पर अपना नाम लिख दिया है, अपने घर ले गए हैं। प्रीतम की मौजूदगी यहाँ पर है, जाहिर हो रही है एक अच्छा मौका मिल सकता है। नहीं प्रीतम नहीं मौका मिल सकता है और ये जबरदस्त बेहतरीन अंदाज में इतिहास बनाएगा, इतिहास बनाएगा। जबरदस्त दूसरा गोल प्रीतम के हाथों से छीनते हुए गोल। श्री विजयपुरम की टीम थाम दिया, हिला दिया एकदम। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आसमान में आतिशबाजियां करते हुए जो ज़िला परिषद फुटबॉल टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ, आज उसका फाइनल था। जो है श्री विजयपुरम से आई हुई टीम आज उसमें विजेता रही और राफ्टर्स क्रीक की जो लोकल टीम है बाराटांग की, वो रनर अप रहे। बहुत ही इंटेंस कंपटीशन रहा यहाँ, 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया और 8 दिन चला ये टूर्नामेंट। और यहाँ की भीड़ देखते ही बनती थी। अराउंड 400-500 लोगों ने यहाँ एज ऑडियंस पार्टिसिपेट किया और हर डिपार्टमेंट ने यहाँ सपोर्ट किया। एजुकेशन ने, पीडब्ल्यूडी ने, फॉरेस्ट ने, सभी प्रधान ने, ज़िला परिषद मेंबर जो हैं अलगर स्वामी जी, उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाया। दूरदर्शन की टीम श्री विजयपुरम से आई हुई है। तो सभी डिपार्टमेंट, सभी लोगों का योगदान से जो है इस टूर्नामेंट का आज कंक्लूजन हुआ। इससे लोगों को, बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी खेलने के प्रति। फुटबॉल एक इंटेंस गेम है जिसमें इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज लगती है। तो अगर शाम को बच्चे अपने स्कूल कॉलेजेस के बाद या जॉब के बाद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सभी उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा एक ही मकसद था और एक मैसेज देना था उन युवा दोस्तों को, उन युवा जो बढ़ता हुआ खिलाड़ी था उनको जो है नशे से दूर करके जो है उन खिलाड़ियों को जो है खेल के प्रति उन लोगों को जोड़ना था, उन खिलाड़ियों को साथ लेके चलना था। तो एक सफल आयोजन हम लोगों ने पूरे प्रयत्न किया और मैं जितने युवा खिलाड़ियों से यही आग्रह करता हूं, आने वाले समय में और भी टूर्नामेंट होना है। जैसे जिला परिषद की बैडमिंटन टूर्नामेंट है, वो भी हम जल्द से जल्द बैडमिंटन टूर्नामेंट भी कराएंगे। आप सभी से यही युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करता हूं, बाराटांग के युवाओं, आप सामने आइए। इस तरह का जो टूर्नामेंट और भी खेलकूद, क्रिकेट सब होना है। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम से कल शाम 6 बजे स्पीड विंग्स जागरूकता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी नॉर्थ पैसेज लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बंबूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे
श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलो मिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सीपी घाट में 8वां बोंगो महासम्मेलन का हुआ आयोजन। सांसद ने की नए मुख्य सचिव से मुलाकात और विश्व एड्स दिवस पर मोटर बाइक रैली आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।